Very good afternoon all. I'm audible? Yes, ma'am. Alright, and my skin is also visible, right? Alright, yeah. Alright, in the last lecture, actually, we have studied about the basics of, I will say that, introduction of your syllabus, right? Because your subject title is Fundamental of Computer Science. Fundamental of Computer Science, it means that we have to learn in this subject what are the basics of computer science, right? Means if you wanna comes into the technology of computer science and what you should know about that, right? What are the basic of computer science actually? In your subject we already know, I've already told you in the last lecture, in your subject we firstly know about that how computer works actually, what are the basic functionality, how your computers actually work. When I'm talking about how your computer works, it actually depend on basically on a 3 to 4 parts. First one, you should know about that what is a computer hardware, right? Then what is a computer software. Yeah, firstly you should know about it what is a computer hardware, right? Then what is a computer software, what is actually operating system, how operating system can be treated as an interface, as a one mediocre person, or you can say it as a GUI interface, right? For interacting, mainly for the interaction between your software to your hardware, right? And after that they are, because I have already told you they are 3 to 4 layers. We have a user, definitely we have a user, and every user have a mobile phones right now, right? Mobile phones and smart TV hai, smart fridge hai, and already know we have a laptop as well, right? We are living in a world of IoT, Internet of Things area. There are so many electronic devices right now. With the help of that we can easily reach out, we can easily use the computer devices, we can easily use the internet as well, right? So there are internet things of devices right now, but and each and every internet of things devices we can say that it's a computer device, right? Your mobile phone is also a computer device, your smart TV is also act as a computer device, your uh, smart band, your fit band, your smart watch, and your smart glasses as well, right? These are the act as a computer device. And for understanding the computer device, we should know about it how computer device actually works, right? We should know about it what is the hardware in your computer device, because when I'm talking about hardware means your keyboard, your mouse, your screen, your CPU, your motherboard, your fan, right? These all things are coming from hardware. And we have a software as well, right? We have a software as well, because when I'm talking about application software, in your mobile phone there are various applications, in your laptop you have a various application, in your smart TV, in your smartwatch you have a various application, WhatsApp is the application, YouTube is the application, right? We have a various applications right now, various application software as well, right? When I'm talking about software means that thing जो हमने कोड करके रखा है, जो हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क, राइट? फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क, whenever you write a code, whenever you implement that task into whenever you want to actually implement any task, right? Because if I'm talking about whenever any task, not even any task, because I'm talking about WhatsApp is actually a messaging app. It's mainly useful for transferring the messages. If I'm talking about YouTube is actually a video app, right? It's mainly useful for watching a video, for uploading a videos. Each and every application software is having one particular task, right? And for performing one particular task, definitely for performing one particular task, we have to implement that task into a computer programming languages, right? Because if I'm talking about in a normal human world, we have to make tea, अगर हमें चाय भी बनानी होती है, तो for that we have a particular steps, right? If I'm talking about कि मुझे YouTube application बनानी है, मुझे कोई software build up करना है, what do you mean by software is just a coding. what do you mean by coding is किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. When I'm talking about मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, मुझे मैसेजिंग करनी है, मुझे मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है, and definitely this is a one task. For performing that task you have to perform some steps, right? You have to perform some steps, and that steps is actually called the algorithm. And for implementing that algorithm into a computer programming language, into a logical language, into a
we have to write some code, right? That code is actually called the programming language, right? When I'm talking about programming language is those language जो एक लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती है, राइट? जो एक लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती है, दोज लॉजिक कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो व्हाट इज मीन अ प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स जस्ट अ simple step by step manner to represent one task. Whenever you have to perform one task, whenever you want to perform any task in computer world, right? In computer world, whenever you want to perform any task, you have to build some logic, right? You have to build some logic and implement those logic in a step by step manner in a one particular language, okay? In a one particular language, and that particular language specially associated with your computer, right? That can easily understood by computer, that can be easily represent your computer computational part, right? Then those languages actually called the programming languages, right? Because they are programming languages, they are presentation languages as well. They are different type of languages. But when we're talking about programming languages means those language which is specifically uh, used for your logic purpose, especially used when you have to implement any logic, right? Those languages actually called the programming languages, right? For implementing, when I'm talking about computer science, for you should know what is the hardware. Just a second. All right. Uh, whenever I actually want to say that whenever you want to implement something, right? Whenever I'm talking about a computer science. In a computer science, which firstly we should know about it. What is the algorithms, right? What is the algorithms? What do you mean by data structure? What is the operating system? How you manage your data? This is actually syllabus. Yes, Dhanraj. Yes. Yes, Dhanraj. You want to say something? Ma'am, your speed is very fast. Could you please? Yeah, ma'am. Sorry to disturb, but your speed is very fast, ma'am. Can't able to understand. Okay. I have to lower my speed. All right. Yeah, actually, I have to talk about when I'm talking about in the last lecture, we actually studied about uh, what what actually we want to study. Okay, what actually we want to study in your subject. Because firstly, you should understand what is your subject title, right? And why we want to teach those type of subject, and why we want to learn from those subjects. First, you should know about these things. Okay, if I'm talking about fundamental computer science, definitely, yeah, this is your subject title. Okay, if I'm talking about this is your subject title, then I want to say that you have to learn about the basics of computer science, right? Basics of computer science, how your computers actually work. Okay, when I'm talking about how your computers actually work, then you should know about the in a real time scenario. You have actually mobile devices right now, right? You have a laptops, you have a smart TV. These all things are actually computerized devices, all devices right now. Because today I'm talking about today we have live in the area of internet of things, right? If I'm talking about internet of things, it means that all of your electronic devices, all of your computerized devices, right? Means your laptop, your mobile phone, all of the devices are called the internet of things devices. And these all devices are electronic devices which actually perform some computational tasks, which actually perform some computerized tasks, right? So when I'm talking about fundamentals of computer science, of course, learn करना है, that it means that you should know about it, how these mobile devices are work, right? How these mobile devices are built up, how these mobile devices are uh, work actually, right? So for that, if I'm talking about if you have a mobile device, then first thing what you feel whenever you have a mobile device in your hand, then first thing what you feel hardware, right? कि वो जो मोबाइल डिवाइस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है. That's why whenever you talk about a computer work, then firstly you should know what is mean by hardware, right? हार्डवेयर क्या होता है? इफ हम टॉकिंग अबाउट योर सीपीयू इज इन अ कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर. आपका फैन हार्डवेयर में आता है. जिस आपका लैपटॉप जिस मटेरियल से बना हुआ दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर. आपकी स्क्रीन इज ऑल्सो हार्डवेयर. जो मोबाइल स्क्रीन इज ऑल्सो हार्डवेयर. जो बैटरी इज ऑल्सो हार्डवेयर, right? So firstly you should know about that hardware, because if you have a mobile phone, firstly आपके हाथ में क्या आएगा? मोबाइल फ़ोन आएगा, राइट? whenever you have a mobile phone, that it firstly you have to see that what is ये मोबाइल फ़ोन में किस मटेरियल का बना हुआ है, ये मोबाइल फ़ोन में बैटरी क्या है, किसकी स्क्रीन कैसी है, राइट?
दिस ऑल थिंग्स फर्स्टली यू शुड नो अबाउट दैट। तो फर्स्ट इन अ कंप्यूटर वर्ड मैंने आई विल से दैट कि आपको कंप्यूटर डिवाइस को अंडरस्टैंड करना, फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द हार्डवेयर। देन जब आप मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परचेज करते हो तो फर्स्टली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, राइट। अगर आपने मोबाइल फ़ोन किया है तो डेफिनेटली दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो, या फिर अगर आपका आईफोन है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो। आपका अगर आई कैन से दैट अगर आपका लैपटॉप है तो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यूनिक्स की बहुत से वर्जन्स हैं। तो मतलब दे इज़ अ वन ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होना चाहिए, right? Why we need an operating system? Because definitely if I'm talking about कि हमें डेटा को प्रोसेस करना है, डेफिनेटली वी ऑल हैव अ डेटा। हमने कंप्यूटर डिवाइस को क्यों बिल्डअप किया है? ऑटोमेशन के लिए। स्पेसिफिक आई वांट से दैट कि हमने कंप्यूटर डिवाइस को क्यों बिल्डअप किया है? ऑटोमेशन के लिए। बिकॉज एक्चुअली वी वांट टू स्टोर आर डेटा एंड वी हैव टू प्रोसेस आर डेटा, राइट। बिकॉज इन आर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी हम वही कर रहे हैं, हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। दैट्स वाई ह्यूमन लाइफ आगे आगे प्रोसीड करती जा रही है, राइट। नॉर्मल ह्यूमन जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, नॉर्मल ह्यूमन जनरेशन भी यही कर रही है, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए, इस चीज़ को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर वर्क है, राइट। तो इट मीन्स दैट जो भी आप कंप्यूटर डिवाइस बनाएंगे, दोज डिवाइस आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर storing of your data or processing of your data, right? So if I'm talking about in a real world, okay, in last section I have studied about you, okay, in a real world we have a materials, right? We have a materials, we have a silver, we have a iron, we have a copper, we have a materials, right? हमें उस materials में हमें क्या करना, इंटेलिजेंस फिट करना होगा, राइट। सो डैट कि वो जो मटेरियल है वो अंडरस्टूड कर सके हमारे डेटा को, प्रोसेस कर सके हमारे डेटा को। और डेफिनेटली हमने वो इंटेलिजेंस को बिल्डअप किया है, इंटेलिजेंस को हमने डाल दिया है। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमंस? ह्यूमंस को वो हार्डवेयर की लैंग्वेज नहीं पता, बिकॉज हार्डवेयर लैंग्वेज इज 0101 लैंग्वेज। ह्यूमन को हार्डवेयर लैंग्वेज नहीं पता। ह्यूमन आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर डिवाइस आर बिल्ड अप फॉर मेकिंग आर लाइफ ईजियर, नॉट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो दैट्स वाई दे आर सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए, एंड सॉफ्टवेयर जो बनाए गए वो ह्यूमन के इफ हम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन की जो कंफर्ट लेवल है उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हुए बनाया गया। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप को आज कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है, चाहे उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो चाहे ना हो, राइट। हमने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाई है, हमने इफ हम टॉकिंग अबाउट देयर यूट्यूब एप्लीकेशन, दे आर लिंक्डइन, दे आर मिंत्रा, देयर इज अमेजन, वेरियस एप्लीकेशन वी हैव, राइट। एंड वो जो एप्लीकेशन है वो ईजी टू यूज़ होती है, कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है, चाहे उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो चाहे ना हो। And those are called the application software, okay। with the help of one click आप just with the help of one click of user आप easily उस application को use कर सकते हैं, and whatever आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन, राइट। बट वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हार्डवेयर में कैसे डेटा सेव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन तो हार्डवेयर पे है, राइट। अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन जो है वो हार्डवेयर पे, अल्टीमेटली हमें जो डेटा सेव करना है वो हार्डवेयर पे सेव करना है, अल्टीमेटली जो डेटा प्रोसेस होगा वो हार्डवेयर पे होगा एंड 0101 फॉर्मेट में होगा। बट हमने जो एप्लीकेशंस बिल्डअप की हैं वो तो अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में की हैं, राइट। हमने इंग्लिश इज़ अ वर्ड कॉमन लैंग्वेज, दैट्स वाई हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपने पाइथन देखा होगा, सी देखा होगा, PHP दे वट एवर, जितने भी आपकी वेबसाइट्स भी बनती हैं मोस्टली सब इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वन कॉमन वर्ड लैंग्वेज, राइट। तो हमने जो एप्लीकेशंस बनाई हैं जो यूज़र की फिजिबिलिटी को देखते हैं, जो यूज़र की कंफर्टेबिलिटी को देखते हैं, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई है। तो इट मीन्स दैट वो जो हमारी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को हार्डवेयर से हमें इंट्रैक्ट कराना होगा। फॉर इंट्रैक्शन पर्पज वी नीड अ वन मीडिएटर, we need a one mediator, we need a one intermediator, right? Because if I'm talking about in a normal human world कि एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनको आपस में बात करनी है, और एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको केवल इंग्लिश आती है, दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को हिंदी आती है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक इंटरमीडिएट पर्सन चाहिए होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, या फिर एक इंटरफेस चाहिए होता है जो कि हमारी बात को एक्सचेंज करा सके, कम्युनिकेट करा सके हमें। In a similar manner, when I'm talking about a computer world, हार्डवेयर knows a one language, हार्डवेयर की वर्किंग अलग लैंग्वेज में हो रही है, हार्डवेयर अलग तरीके से वर्क कर रहा है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने जो बनाया विद द हेल्प ऑफ कि यूजर्स कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स की कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए हमने बनाया है,
That's why we need a one platform. We need a one platform. We need a one intermediate interface. We need a one mediocre, or you want to say that one. We need a one graphical user interface by which we are, our application software can easily interact to your hardware, right? And that interface is actually called the operating system. Okay, this is actually a basic term. This is actually a basic thing जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, बिकॉज ये आर द दिस इज एक्चुअली ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस कि हम आपके सिलेबस में पढ़ना क्या चाहते हैं। एल्गोरिथम्स मैंने कहा था, हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर टास्क, जैसे व्हाट्सएप इज अ टास्क। व्हाट्सएप का क्या पर्टिकुलर टास्क है? मैसेज को एक्सचेंज करना, दैट इज वन पर्टिकुलर टास्क। उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? डेज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। डेफिनेटली हर टास्क को परफॉर्म करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हमने लिखा, जब हमने इन अ इंग्लिश लैंग्वेज और आई वांट टू से इन वट एवर लैंग्वेज यू हैव कंफर्टेबल, आपने उस को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जब आपने लिखा है, देन वी कैन से दैट्स कॉल्ड द एल्गोरिथम, राइट। एंड जब उस एल्गोरिथम को हम कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जब उस एल्गोरिथम को हम कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज एप्लीकेशन, बिकॉज हमें एक जो हमारी एल्गोरिथम है उसको एक कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, राइट। जो भी हमारी लैंग्वेज है, जो भी हमारे जो एल्गोरिथम को बिल्ड किया उसको हमें एक कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना होगा, सो डैट कि वो ईजिली हार्डवेयर को अंडरस्टूड कर सके, राइट। क्योंकि हार्डवेयर कनेक्शन लैंग्वेज, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज अ लो लेवल लैंग्वेज, देयर इज अ मीडियम लेवल लैंग्वेज, देयर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। लो लेवल लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लो लेवल लैंग्वेज, इट मीन्स दैट जो हार्डवेयर अंडरस्टूड करता है। मीडियम लेवल लैंग्वेज जो इंटरमीडिएटेड लैंग्वेज होती है, ऑलराइट। Just a second, my skin is visible. Yeah. Guys, my screen is visible, right? Or you have an issue? No, ma'am. Just No, a no, ma'am. Your screen is not visible. Okay, just a second. Yeah, now it's visible, right? I think so, yeah. Now it's Yes, ma'am. Yes, alright, ma'am. yeah. Alright, this is actually all about the when I'm talking about the basics of your computer science, because firstly you should know about it कि हमें इस subject में पढ़ना क्या है, right? And why we want to read all these things? Why we want to read a algorithm क्या होती है, data क्या होता है? Why we need a database management system? Because it's all about the data. Okay, it's all about the data. Data को save करना है, data को process करना है. Definitely we have a loss of data. As I have already told you one example कि अगर मैं एक particular person की बात करूँ, मेरी बात करूँ मैं, I have my personal life as well as my professional life, right? And both data is important for me right now. But अगर मैं अपनी professional world में हूँ, then my personal data is useless, right? And if I'm talking about कि अगर मैं अपनी personal life में हूँ, then my professional data is useless. Then we have a data. Definitely we have a data. We have a loss of data. Then, but what data is important for you,
know that each and every data, my personal professional both like is important for me, but in which scenario you have a different type of scenario, in which scenario you want to what type of data. Okay, because we have a limited number of resources. Definitely you have इफ हम टॉकिंग अबाउट योर मोबाइल फ़ोन, हम आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ 20 से 30 एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी. ओके, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, हम एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं. ऑलराइट, तो एक्चुअली ईच एंड एवरी डिवाइस हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. नो डाउट हम रिसोर्सेज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट रिसोर्सेज इंक्रीमेंट करने पे आपकी कॉस्ट पे इंक्रीमेंट हो सकती है. एंड ईच एंड एवरी यूजर doesn't have a capability to buy these type of things, right. Okay, अगर कॉस्ट अगर आपके रिसोर्सेज हैवी हो जाते हैं, अगर आपकी स्पेस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट कि अगर मैं 1 TB की हार्ड डिस्क को लेने जाऊँ एक्स्ट्रा, माई लैपटॉप से एक्स्ट्रा अगर मैं 1 TB हार्ड डिस्क को परचेज करने जाऊँ, तो इट टेक्स अ 4,000 to 5,000 रुपीज़, राइट. तो ईच एंड एवरी पर्सन इज, आई वांट टू से दैट कि हर पर्सन कैपेबल नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को बाय कर सके, right. So that's why I want to say that ki we have a limited number of resources, we have a limited number of space, so that's why we have to use that resource appropriately. तो we know about that कि हमें कौन से डेटा को किस एनवायरनमेंट पे यूज़ करना है, हमें डेटा को ऐसे प्रोसेस करना है कि हमें लिमिटेड मेमोरी लगे, राइट, बिकॉज वी हैव अ डेटा, डेफिनेटली वी हैव अ डेटा, बट डेटा हमारे पास बहुत सारा है. इफ़ हम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से, यू हैव अ यूनिवर्सिटी, मैं आपकी यूनिवर्सिटी से डेटा मांगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने फैकल्टी डेटा दे दिया, उन्होंने स्टूडेंट का डेटा दे दिया, उन्होंने स्टाफ का डेटा मुझे प्रोवाइड कर दिया, बट फॉर मी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो कौन सा था, फैकल्टी का डेटा. तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने लैपटॉप में ओनली फैकल्टी के डेटा को ही सेव करूँगी. स्टूडेंट एंड स्टाफ का डेटा इस अगर वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो मैं उसको सेव नहीं करूँगी, बिकॉज इन माई लैपटॉप वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी, राइट. डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, डेटा मेरे पास बहुत है. ओके, बट हाउ विच डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मैं केवल उसी डेटा को यूज़ करूँगी, उसी डेटा को मैनेज करूँगी. तो दैट्स कॉल्ड द डेटा मैनेजमेंट. दे आर वेरियस टेक्निक्स in a, if I'm talking about more technical, in a more technical way, there are various techniques for data management as well, right. Today actually I want to say that today lecture is a basic lecture of data structure. Okay, because it's your first unit. When I'm talking about your first unit is actually talk about a data structure. Alright. Okay, when I'm talking about data structure, then what do you mean by data structure? We already know about that one thing कि हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मिंग एनी टास्क, चाहे मैसेजेस को हमें सेंड करना हो, चाहे हमें वीडियोस को अपलोड करना हो यूट्यूब एप्लीकेशन में, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी होगी, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा. Yep. Hey, yes, anyone, there's a message, just a second. Alright, guys, I'm audible. Yeah. Alright, actually I want to talk about in today's lecture, we want to talk about the data. Yes, ma'am. Yeah, okay. Okay, my voice is not clear. Now it's clear. Okay, fine. Actually, in today's lecture, we have to talk about data structure, right? Because whenever you want to build any application, there's a YouTube application, there's a WhatsApp application, many applications we have. Whenever you want to build any application, it means that वो एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर टास्क है, हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है. दैट्स व्हाई वी हैव अ बिल्ड वन एप्लीकेशन, राइट. एंड कभी भी हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करना होता है तो ऑलवेज देयर अ स्टेप बाय स्टेप मैनर टू परफॉर्म दैट टास्क. इट मीन्स दैट कि अगर आपको किसी टास्क को परफॉर्म करना है, फर्स्टली यू शुड मैनुअली एनालाइज, मैनुअली रिटन अप कि व्हाट आर द स्टेप्स टू परफॉर्म दैट टास्क. एंड जब भी मैं किसी टास्क को स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखती हूँ, देन वी कॉल्ड इट दैट थिंग इज कॉल्ड द एल्गोरिथम, राइट. बट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मीन्स कि अगर मुझे किसी टास्क को परफॉर्म करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैनर जब मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखती हूँ, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ एल्गोरिथम, राइट. तो
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, राइट, अगर मैं बोलूँ कि एल्गोरिथम है, तो इन एल्गोरिथम अगर एफ एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा एक टास्क है कि मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है। दिस इज वन सिंपल टास्क, ओके, कि अगर मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना होगा, डेफिनेटली दीज 5 नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय 5 नंबर्स, मीन्स वी हैव अ 5 इंटीजर नंबर, वी कैन हैव हम 5 इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं, 5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले सकते हैं, बट हमें न्यूमेरिकल नंबर 5 लेना है। और 5 नंबर्स को मुझे लेना है, फर्स्टली हमें यूज़र से वो 5 नंबर्स को लेना है, देन उन नंबर्स में एडिशन परफॉर्म करना है, राइट। ये मेरा टास्क है। अगर ये मेरा टास्क है, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्टली मुझे यूज़र से उन 5 नंबर्स को लेना होगा, राइट, मुझे उन 5 नंबर्स को इनपुट कराना होगा। और जब भी मैं कोई चीज़ इनपुट कराऊंगी, डेफिनेटली वो मैं मेमोरी में सेव करूँगी, बिकॉज दिस 5 नंबर्स आर माई डेटा, ओके। अगर मैं इन 5 नंबर्स की बात करूँ, तो दिस 5 नंबर्स आर माई डेटा। और अगर ये 5 नंबर्स मेरे डेटा हैं, तो इन डेटा को मुझे सेव करना होगा मेमोरी में, ओके। देन मुझे जो भी परफॉर्म कर, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, देन वो जो मेमोरी में डेटा मेरा सेव होगा, मैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वट एवर आई वॉन्ट मैं परफॉर्म करूँगी, राइट। तो इट मीन्स दैट ऑल थिंग्स, अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे 5 नंबर्स को एडिशन करना है, तो फर्स्टली मुझे यूज़र से वो 5 नंबर्स को इनपुट कराना होगा, मुझे यूज़र से 5 नंबर को जैसे वो इनपुट करेगा, मुझे अपनी मेमोरी में सेव करना होगा। देन मैं प्रोसेस करूँगी वट एवर ऑपरेशन दे वांट, एंड देन मैं आउटपुट दूँगी, राइट। इट्स द सेम टास्क जैसे ह्यूमन करता है। अगर मैं ह्यूमन को भी, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को भी बोलूँ कि मुझे टास्क परफॉर्म करना है और तुम्हें 5 नंबर को ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपसे आस्क करेगा प्लीज़ प्रोवाइड में 5 नंबर्स। जैसे जैसे सामने वाला 5 नंबर्स प्रोवाइड करेगा, वो अपनी मेमोरी में उन 5 नंबर्स को सेव करेगा। देन इट टेक्स 1 to 2 मिनट, ओके, इट कैन बी 10 to 20 सेकेंड एज वेल, टाइम उसके डिपेंड करता है। देन आफ्टर 10 to 20 सेकेंड वो अपनी मेमोरी में प्रोसेस करेगा। देन फाइनल आउटकम आपको बोलेगा कि ये आपका आउटकम है, कि ये 5 नंबर्स को ऐड किया तो ये आपका आउटकम आया, राइट। नॉर्मल ह्यूमन में भी यही हो रहा है, जस्ट totally mimic that human word to a computer word। अगर मुझे कंप्यूटर वर्ड में भी 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं यूज़र से पूछूंगी, जो सामने वाला पर्सन होगा, कि प्लीज़ प्रोवाइड मेरा 5 नंबर्स। जैसे वो 5 नंबर्स प्रोवाइड करेगा, वो मैं कंप्यूटर मेमोरी में सेव करूँगी। देन आफ्टर डैट कंप्यूटर मेमोरी में सेव करने के बाद मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगी, वट एवर कैलकुलेशन यू वांट, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वट एवर कैलकुलेशन यू वांट, हमारा सीपीयू वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। देन आफ्टर डैट हम आउटपुट दे देंगे, राइट। यही मेन टास्क है सीपीयू, यही मेन टास्क है हमारा कंप्यूटर मेमोरी में भी। मैं in this whole task, okay, this is actually a simple task, okay, this is actually a simple task। in this whole task main पोर्शन कहाँ पे आता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, बिकॉज मैंने कहा कि हम डेटा को क्या करेंगे, मेमोरी में सेव करेंगे। मैं उन 5 नंबर्स को मेमोरी में सेव करूँगी। जैसे वो मेमोरी में सेव होगा, देन सीपीयू क्या करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो नॉर्मल ह्यूमन का जो मोटिव होता है वो कैसे ऐड करता है, सबसे पहले पहला नंबर लेगा, फिर सेकंड नंबर लेगा, मीन्स पहले फर्स्ट नंबर लिया, देन सेकंड नंबर लिया, हमने उनको एडिशन परफॉर्म किया। जब जो एडिशन आया, उस एडिशन में हमने थर्ड नंबर को ऐड किया, देन वो उसका जो एडिशन आएगा, देन हम नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे। फाइनली एडिशन करते करते हम एक नंबर पे पहुंचेंगे, दैट्स योर टोटल सम, ओके, और वो भी किसी मेमोरी में सेव होगा, राइट। तो इट मीन्स दैट अगर मैं इस पूरे टास्क को देखूँ, तो ये पूरा टास्क रिलेटेड है डेटा से, कि कैसे आप डेटा को सेव कर रहे हो, कैसे आप डेटा को मैनेज कर रहे हो, राइट। जस्ट या अगर हम टॉकिंग अबाउट कि ये पूरा टास्क है, ये पूरा टास्क एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसे डेटा को सेव किया है, कैसे आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे आपका डेटा मेमोरी में जा रहा है, राइट। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डेटा स्टोरेज, ओके, ये कैसे आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हो, ओके। बिकॉज अगर आपने टॉकिंग अबाउट 5 नंबर्स दिए हो, अपने 5 नंबर्स को आपने मेमोरी एलोकेट की है, तो कैसे आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, कैसे आपका डेटा सेव हो रहा है, देन कैसे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट था आपने उसको कैसे सेव किया है, देन फाइनल आउटकम को आपने कैसे सेव किया है, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर मेमोरी, इनटू योर कंप्यूटर मेमोरी, राइट। तो बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि आप डेटा को कैसे स्ट्रक्ट करोगे, आप डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे आप अपनी मेमोरी में, ओके। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स
how you can represent, how you can organize these type of data into your memory. बिकॉज डेफिनेटली आपको कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, अगर मैं कहूँ कि आपको मैसेज भी सेंड करना है व्हाट्सएप पे, वो भी डेटा है, वो भी डेटा है, वो भी आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करना है तो आपको वो भी डेटा हुआ, उस डेटा को भी आपको परफॉर्म करना है, उस डेटा को भी अगर आपको सेव करना होगा, अगर मैं कहूँ कि व्हाट्सएप मैसेज सेव हो रहे हैं तो व्हाट्सएप मैसेज सेव होंगे तो डेफिनेटली वो मैसेज भी आपके मेमोरी में सेव होंगे, राइट, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप मैसेज है तो व्हाट्सएप मैसेज भी आपके मेमोरी में सेव होंगे. Just a second, what happened with my screen? Just a second, you're not allowed to share your screen. Why I'm not allowed? वागले जी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे? नंबर आपकी प्रोफाइल में कृष्ण भगवान की फोटो लगी है, वो कृष्ण की बांसुरी की फोटो है. ओके ओके. Alright, actually there's a network issue. I'm audible. Yeah, actually there's a network issue. Yeah, actually I want to talk about data structure. Data structure means how you represent your data. Okay, how you represent your data, or I want to say that how you organize your data into a computer memory, because we have a limited memory. Okay, because when I'm talking about memory, we have a limited memory. If we have a limited memory, then we have to efficiently organize your data. Okay, we have to efficiently organize your data, we have to efficiently represent your data into a memory. And main portion is that you have to save your data into a memory, and after some time, okay, there can be a possibility, because there's a one procedure. Firstly you have to save your data into a memory. There can be a possibility that after some time you have to recall that data from the memory, because it's a normal human nature कि हमने अपने मेमोरी में कुछ डेटा को सेव करके रखा, आफ्टर 4 to 5 days हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी में रिकॉल करते हैं कि हाँ पास्ट 3 to 4 days में ऐसा हुआ था, ऐसा रिकॉलिंग ऑफ योर डेटा फ्रॉम योर मेमोरी. ओके, तो दिस सेम थिंग कि आपको, अगर मैं बात करूँ कि आपको अपनी मेमोरी में डेटा को सेव करना है तो मेमोरी को अप्रोप्रिएटली सेव करना पड़ेगा मेमोरी में, सो डैट कि आप फर्दर फ्यूचर में अगर उस डेटा को रिट्रीव करना चाहो, डेटा को फाइंड आउट करना चाहो अपनी मेमोरी से, तो सो डैट यू कैन ईजिली रिट्रीव योर डेटा फ्रॉम दैट मेमोरी, राइट. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि हम अपने माइंड में भी डेटा को सेव कर सकते हैं. आफ्टर 3 to 4 days अगर मुझे याद करना हो कि
3 से 4 दिन पहले क्या हुआ था, तो मैं इजीली रिकॉल कर लेती हूँ अपनी मेमोरी से। सेम मैनर हमें डेटा को सेव भी करना है, एप्रोप्रिएटली सेव करना है डेटा को अपनी मेमोरी में। यस भागी, यस, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम थोड़ी स्पीड और मैम थोड़ी स्पीड और स्लो करो, ओके फाइन। क्योंकि बहुत फास्ट कर रही है। ये तो बेसिक है, इसको थोड़ा समझ में आ रहा, बाकी अगर आगे जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैडम स्लो। और धीरे कर देती हूँ मैं। ठीक हो। ऑलराइट, या ऑलराइट। Because when I'm talking about data structure, just go to a name, क्योंकि in computer वर्ड जो भी नाम है ना वही उसका काम है। Actually I want to say that वही उसका typical meaning होता है। Data structure means what do you mean by structures? अगर मैं normal English की बात करूँ, structure means कि आपको एक structure बनाना है, आपको एक presentation बनानी है, आपको एक organize करना है किसी चीज़ को, struct करना है। Okay, when I'm talking about structure, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी बिल्डिंग है, राइट, ये और ये बिल्डिंग का मैप है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि ये मेरी बिल्डिंग है और ये मेरी बिल्डिंग का एक मैप है, तो इस बिल्डिंग को ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ये है, मेरी बिल्डिंग में इतने रूम्स होने चाहिए, इतने फ्लोर्स होने चाहिए, ये मेरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मीन्स मेरे पास जो स्पेस थी मैंने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया कि मुझे कितने रूम्स चाहिए और किस रूम में क्या होगा, किस फ्लोर पे क्या होगा। इट मीन्स मैंने जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी, मैंने जो अपना लैंड लिया था, मैंने जो अपना स्पेस लिया था, उसको मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। दैट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चर। सिमिलर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, इट मीन्स दैट कि डेटा को भी मुझे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को भी मुझे प्रॉपरली प्लेस पे रखना है, प्रॉपरली मुझे स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है? इन द मेमोरी। ऑलराइट, तो इट मीन्स दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, इफिशिएंटली स्टोर करना है, इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना है, देन फॉर दैट वी हैव अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि मुझे डेटा को स्ट्रक्ट करना है, डेटा को एप्रोप्रिएटली स्टोर करना है, डेटा को एप्रोप्रिएटली ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट मेरा डेटा इफिशिएंटली प्रोसेस हो सके। एंड अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए कि मुझे उस डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा को रिकॉल करना है, तो मैं इफिशिएंटली उसको रिकॉल भी कर सकूँ। ऑलराइट, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस यही होता है। तो फॉर दैट पर्पस दे आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो हमने फॉर्म किए हैं। ओके, ये व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेमोरी में हमने कुछ फॉर्मूलेस फॉर्म किए, और आई वांट टू से दैट कि दे आर सम रूल्स जो हमने फॉर्मुलेट किए हैं, दे आर सम टाइप्स जो हमने फॉर्मुलेट किए हैं, सो दैट वी कैन ईजली ऑर्गेनाइज आर डेटा। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने कुछ रूल्स फॉर्म किए हैं, या फिर मैं कहूँ कि मैंने कुछ टाइप्स फॉर्म किए हैं फॉर सेविंग आर डेटा इनटू अ मेमोरी, तो व्हाट आर दोज टाइप? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स। ओके, दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स जिन्होंने कुछ रूल्स को फॉर्म करके रखा है। एंड डेफिनेटली जो रूल्स फॉर्म हुए हैं वो नॉर्मल ह्यूमन नेचर को ही देखते हुए फॉर्म हुए हैं। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं, ओके, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऑल अबाउट डेटा। तो जो भी रूल्स को फॉर्म किया गया है फॉर स्टोरिंग योर डेटा, वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ को अंडरस्टैंड करते हुए ही किया गया है। Okay, so there's a one diagram I would just want to show that in the next slide. Okay, this one is a slide. Alright, you can see this slide. In this slide, when I'm talking about data structure, तो data structure को actually divide किया गया है. Okay, data structure को हमने divide किया है. हमने क्यों divide किया है? They can be basic things कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक बिल्डिंग है, ओके, मेरी एक बिल्डिंग है, मुझे उस मेरे एक स्पेस है। अगर मैं बोलूँ स्पेस इन द सेंस कि मेरी एक लैंड है, मेरी खाली लैंड है, उसमें मुझे एक बिल्डिंग बिल्ड करनी है। ओके, अगर मुझे बिल्डिंग बिल्ड करनी है तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे बिल्डिंग बिल्ड करनी है। अगर टॉकिंग अबाउट अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बिल्ड करनी है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बिल्ड करनी है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नीड। ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नीड कि आप कैसे स्पेस को यूज़ करोगे, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। फॉर बेसिस ऑफ दैट हमने भी कंप्यूटर वर्ड में जब डेटा को ऑर्गेनाइज करना था तो दे आर एक्सपर्ट्स, उन्होंने उसको डिवाइड करके रखा है कुछ पोर्शंस में। इट्स टोटली डिपेंड ऑन नीड कि कैसे ह्यूमन को नीड पड़ी, कैसे कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो फॉर दैट दे आर टू डिविजन्स, primitive data structure and non-primitive data structures. When I'm talking about primitive data structure, primitive means just go to the word. There's a word called primitive.
प्रिमिटिव का मीन्स क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश वर्ड की बात करूँ, व्हाट इज नॉट प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मीन्स दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का, अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में वो आपके डेटा स्ट्रक्चर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि जो स्पेसिफिकली नीडेड होंगे आपकी कोडिंग लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड फ्रॉम टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव, इट मीन्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, बेसिक वन डेटा स्ट्रक्चर मीन्स बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर कॉल्ड द बेसिक रूल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मैनेजिंग ऑफ डेटा whenever you want to store your data into a memory. Okay, अगर मैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यू कैन सी दैट कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से पोर्शन आते हैं। इंटीजर वाई इंटीजर आएगा क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में क्या करते हैं, काउंटिंग को यूज़ करते हैं कि हमें 1 kg वो चाहिए, 2 kg वो चाहिए। फ्रॉम टॉकिंग अबाउट कि कानपुर से दिल्ली जो है वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, यानी कि हम न्यूमेरिक डेटा को यूज़ करते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंसान न्यूमेरिक डेटा को यूज़ कर रहा है, इंटीजर डेटा को यूज़ कर रहा है, राइट। तो दैट्स अ बेसिक थिंग कि विदाउट उसके हम कोई डेटा को सेव ही नहीं कर सकते, विदाउट दैट हम डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो दोज आर कॉल्ड द प्रिमिटिव वन। जैसे इंटीजर हुआ, राइट, इंटीजर मीन्स इंटीजर डेटा। फ्लोटिंग डेटा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे जो परसेंटेज है वो 99.5% है, नॉर्मल, हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। दोज आर द बेसिक वंस, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट की कैरेक्टर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर स्ट्रिंग, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। माई नेम इज़ जसप्रीत, इस डेटा को कैसे सेव करोगे आप? दिस इज अ बेसिक लैंग्वेज, कैरेक्टर को सेव करना। ओके, और बूलियन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बूलियन, बूलियन मीन्स हाँ या ना में आंसर देना। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बूलियन, बूलियन का मीन्स क्या होता है, यस और नो। इधर यू, इस क्वेश्चन का आंसर यस होगा, इधर नो होगा। तो एक्चुअली दीज आर द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स द मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ दैट आप मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। मीन्स दीज आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, अब विद द हेल्प ऑफ दैट आप मोर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन भी क्या करता है, नॉर्मल डेटा को लेता है। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी सामने वाले को, किसी पर्सन को बोलूँ कि माय नेम इज़ जसप्रीत, वो क्या करेगा, सबसे पहले एम उठाएगा। डेफिनेटली जैसा ह्यूमन माइंड, ह्यूमन में कैसे मेमोरी में कैसे डेटा सेव हो रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय नेम इज़ जसप्रीत, पहले एम सेव होगा, देन वाई सेव होगा, देन स्पेस होगा, देन आई एस, ऐसे करते करते पूरा डेटा सेव होता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले मैंने एम सेव किया, वाई सेव किया, देन स्पेस सेव किया, इट मीन्स दैट मैंने हर एक कैरेक्टर को सेव किया है, राइट। हमने हर एक कैरेक्टर को सेव किया है, नो डाउट हर एक कैरेक्टर्स को बिल्ड करके मैं पूरा सेंटेंस बनाऊंगी, नो डाउट मैं सेंटेंस बनाऊंगी, लेकिन मेरी मेमोरी में जो डेटा सेव हो रहा है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेव हो रहा है। आफ्टर सम कंप्यूटेशन, आफ्टर सब प्रोसेसिंग, मैं इस पूरे को सेंटेंस बनाऊंगी। क्योंकि जब हमें इंग्लिश लर्न भी कराई जाती है तो कैसे हम इंग्लिश लर्न करते हैं, फर्स्ट हम अल्फ़ाबेट्स को लर्न करते हैं, राइट, देन हम वर्ड्स में जाते हैं, देन हम सेंटेंसेस में जाते हैं। सेम हम कंप्यूटर वर्ड में भी करेंगे, पहले हम अल्फ़ाबेट्स को सेव करेंगे, राइट, उससे हम वर्ड्स बनाएंगे, देन हम उससे सेंटेंस बनाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग सम थिंग्स। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स those data structure which is the basics of every language, और I want to say that कि जब भी आप कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो बेसिक्स होते हैं those are called the primitive data structure। ओके, इसमें इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बूलियन, क्योंकि यही हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ओके, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि माय नेम इज़ जसप्रीत, ये एक सेंटेंस है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, माय नेम इज़ जसप्रीत, देन अगर मुझे एम को सेव करना है, वाई को सेव करना है, अलग अलग कैरेक्टर को मैं सेव कर रही हूँ, देन ये प्रिमिटिव हो गया। लेकिन जब मैंने इस कैरेक्टर को आपस में कंबाइन करके वर्ड बनाया, सेंटेंस बनाया, देन इट्स नॉन प्रिमिटिव। ओके, मीन्स आफ्टर सब प्रोसेसिंग और आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही हूँ, जब मैं डेटा प्रोसेस कर रही हूँ, जब मैं डेटा को मैनेज कर रही हूँ, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, देन इट्स कॉल्ड अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली दे आर वेरियस डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल नाउअडेज, बिकॉज आज हम टॉकिंग अबाउट कि ये कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड ऑब्वियसली 50 to 60 years बैक चला आ रहा है,
तो बहुत से रिसर्चर्स इस पर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बेस्ड ऑन दैट हमने कुछ कुछ चीज़ें फॉर्म करके रखी हुई हैं, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर sorry, in a non-primitive data structure we have a linear data structure or we have a non-linear data structure. अब ये types कैसे हैं? That can be possibility, if I'm talking about linear data structure, then can be possibility कि हम data को linear way में save करें। अब linear way में save करने के भी there are various ways. There's a array, there's a stack, there's a queue, linked list, and non-linear there's a tree, graph, and hash table. Okay, just look at our diagram. I have a diagram by which you can easily understand what I wanna say. Okay, you can see in the first diagram, there is no first diagram, मैंने क्या किया है, जो आपके primitive data structure से मैंने उसको define किया है। primitive data structure में मैंने कहा था mainly four हैं, they can be possibility is totally depend on language to language. Okay, there is a C, there is a Java, there is a PHP. language to language पे depend करेगा कि आपके primitive data structure क्या है। ओके, मोस्टली सेम ही होते हैं, मैं बोल रही हूँ मोस्टली सेम ही होते हैं, बट दे कैन बी सम डिफरेंसेस डिपेंड ऑन लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ओके, तो बट बेसिक अगर हम टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बूलियन नंबर है और कैरेक्टर नंबर है, यही मैंने कहा था। तो यही आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लिखे हुए, और इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करूँ तो इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर, तो यानी कि मुझे इंटीजर वैल्यू को सेव करना है, तो मैं इन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगी फॉर सेविंग द इंटीजर वैल्यू। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे इस टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर को सेव करना है, तो देयर कैन बी अ फ्लोट, देयर कैन बी अ डबल, और भी है यहाँ पे फ्लोट, डबल, दे आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सेव करते हैं। अगर मैं कहूँ केवल मुझे हाँ या ना में आंसर देना है, 0 1 में आंसर देना है या ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, वो डेटा मुझे सेव करना है, बिकॉज दे आर वेरियस क्वेश्चन, ओके, जिनका आंसर केवल हाँ या ना में होता है, राइट। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स को मुझे सेव करना है जो ट्रू फॉल्स में सेव होंगे, देन वी हैव टू यूज सम बूलियन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे कैरेक्टर को सेव करना है, देन वी हैव अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इसमें एक पॉइंट और भी है, हर जो डेटा स्ट्रक्चर का मैंने आपको टाइप बताया है, ओके, जब भी आपको मैंने टाइप बताया कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर जब भी आपकी मेमोरी में सेव होगा वो कुछ ना कुछ मेमोरी को एलोकेट करेगा। इंटीजर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, अगर कोई इंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी में सेव हो रहा है, तो वो मेमोरी को एलोकेट करेगा। ओके, बिकॉज वी हैव अ स्पेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे एक लैंड है, मुझे खाली स्पेस, उसमें मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक स्पेस है, ठीक है, मेरे पास एक स्पेस है, मेरे पास एक लैंड है, मैंने उस लैंड का 50% पोर्शन जो है मैंने पार्किंग में दे दिया, 10% पोर्शन जो है मैंने उसको प्लेग्राउंड में दिया है, 20% पोर्शन में मैंने बेडरूम बनाया है, यानी कि वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, और हर उस जो स्पेस है मेरे पास, उस स्पेस को मुझे फिल करना है। सेम मेरे पास मेमोरी है, मुझे मेमोरी को फिल करना है, वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इतना परसेंट मैंने इसको दिया, इतना परसेंट मैंने उसको दिया। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, जब मैं बोलूँ कि मुझे जस्ट ऑलराइट, जब मैं बोलूँ कि मुझे एक्चुअली डेटा को सेव करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास लैंड है, खाली लैंड है, मुझे उसमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, अलॉट करती हूँ कि 20% स्पेस में मैं बेडरूम बनाऊँगी, 20% स्पेस में मैं पार्किंग बनाऊँगी, यानी कि हमने स्पेस को एलोकेट किया फॉर पर्टिकुलर टास्क, फॉर पर्टिकुलर रूम। ओके, इन अ सेम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेमोरी, जब भी मैं मेमोरी में डेटा सेव करती हूँ, तो मेमोरी मेरे पास लिमिटेड है, मेमोरी में मेरे पास एक स्पेस है, मैं कहूँगी कि इतना पोर्शन जो है वो इंटीजर फॉर्मेट के लिए होगा, इतना पोर्शन जो है वो फ्लोटिंग के लिए होगा, इतना पोर्शन जो है वो इस डेटा को सेव करने के लिए होगा, हमने स्पेस को एलोकेट करके रखा है। तो
सिमिलर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम इतनी बाइट स्टोर करके रखेंगे कि जब भी इंटीजर डेटा आएगा मेरे पास तो वो इतनी बाइट को एलोकेट करेगा जब मेमोरी में सेव करना होगा। जब भी मेरे पास कैरेक्टर डेटा आएगा तो मैं इतनी बाइट मेमोरी को लेके रखूँगी जिसमें मेरा कैरेक्टर डेटा सेव होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाइट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि बाइट है, बिट्स है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइट्स? तो बिट्स एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड में जब मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है देन वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट मेमोरी विद द हेल्प ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ओके, क्योंकि जब भी आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो तो आपने देखा होगा, आप बोलते हो कि 1 GB रैम है इसमें 2 GB रैम है, इसमें 5 GB रैम है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस थिंग्स? मीन्स उसमें इतनी मेमोरी है। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट GB, जी के आगे बी कैपिटल में अगर है देन इट्स कॉल्ड अ बाइट, अगर बी स्मॉल में है देन इट्स कॉल्ड अ बिट्स। ओके, हमारी मेमोरी एक्चुअली बिट्स एंड बाइट्स में चलती है। बिट्स एंड बाइट्स आर नथिंग, यू कैन से दैट these are actually a terminology. Okay, these are actually all a terminology. If I'm talking about bit means मुझे एक डिजिट सेव करनी है. If I'm talking about byte यानी कि मुझे 8 डिजिट को सेव करना है. It's a similar manner. I'm talking about कि अगर मुझे लैंड परचेस करनी है तो कहते हैं ना कि अगर मुझे लैंड परचेस करनी है तो मुझे 1 एकड़ लैंड परचेस करनी है, 2 एकड़ लैंड परचेस करनी है, या फिर 10 बीघा लैंड परचेस करनी है, 20 बीघा लैंड परचेस करनी है. दिस इज एक्चुअल मेजरमेंट, राइट? इन अ सिंपल कंप्यूटर वर्ड मेमोरी में दिस आर द मेजरमेंट्स. मुझे इतना इंटीजर को अगर सेव करना है तो मुझे इतना बाइट लगेगा. अगर मुझे कैरेक्टर वर्ड को सेव करना है तो मुझे इतना बाइट लगेगा. देयर आर पर्टिकुलर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर पर्टिकुलर स्पेस फॉर सेविंग इंटीजर नंबर, फॉर सेविंग कैरेक्टर नंबर. ओके, हमने इस स्पेस को मेंटेन करके रखा हुआ है. ऑलराइट, this these are actually called the primitive data structure. And if I'm talking about these are primitive data structure. Second category is non-primitive data structure. जो मैंने कहा था primitive data structure से combination से मिलके बनी है, right? And उसमें 2 एग्जाम्पल लिए थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर का अगर मैं पहला एग्जाम्पल दूँ तो लीनियर का पहला एग्जाम्पल होता है एरे. व्हाट डू यू मीन बाय एरे? एरे का मीन्स क्या है कि हम इंटीजर के मतलब when I'm talking about array, because when I'm talking about integer का मतलब क्या हुआ? एक इंटीजर वैल्यू को सेव करना. ओके, इंटीजर का मतलब क्या हुआ? एक इंटीजर वैल्यू को सेव करना. बट दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हमें मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज को सेव करना हो, वो भी एक साथ एक मेमोरी में सेव करना हो, कॉन्टिन्यूस मेमोरी में स्पेस सेव करना हो. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. तो फॉर दैट हमने क्या किया? एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया. एरे इज़ अ वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप सेम टाइप के डेटा को सेव कर सकते हो. मीन्स सेम टाइप के इंटीजर वैल्यूज, सेम टाइप के डेटा का मीन्स या तो ऑल इंटीजर वैल्यू को सेव कर सकते हो या फिर ऑल कैरेक्टर वैल्यू को आप सेव कर सकते हो. एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आप कॉन्टीन्यूसली सेव कर सकते हो. कॉन्टीन्यूस का मीन्स क्या हुआ कि मैं बोलूँगी अगर मैं घर पे रहती हूँ, ठीक है, मेरे नेबर में कौन है? मेरी फ्रेंड मेरे नेबर में रहेगी, उसकी फ्रेंड उसके नेबर में रहेगी, यानी कि कॉन्टीन्यूस मेमोरी को अलॉट किया है. कॉन्टीन्यूस हमने बिल्डिंग्स बना के रखी हैं. सेम अगर आपको कॉन्टीन्यूस मेमोरी को एलोकेट करना है फॉर सेविंग द डेटा, राइट? तो दिस एरे इज हेल्प्स यू आउट. एरे में क्या होगा कि आप मल्टीपल डेटा को सेव कर सकते हो, मल्टीपल सेम टाइप के डेटा को सेव कर सकते हो एंड कॉन्टीन्यूस मेमोरी में सेव कर सकते हो. दिस इज अ वे एक्चुअली researchers find out the way how we can arrange the memory, how we can organize it into memory. There can be a various ways. Even you can find out your own way as well. Okay, तो डेफिनेटली रिसर्च हो चुकी है एंड रिसर्च अभी भी चल रही है. अगर आपको कोई और वे फाइंड आउट होता है मेमोरी में डेटा सेव करने का, देन इट्स अप टू यू. ओके, यू कैन बिल्ड योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, you can build your own application as well. It's totally depend on you how you can efficiently want to save your data. Okay, there's another linear matter is called a linked list. Here you can say that hi, how are you? This is a statement मुझे सेव करना था. Definitely this statement can be saved with the help of array as well. हम इसमें भी सेव कर सकते थे, लेकिन लिंक लिस्ट ने क्या कहा कि that can be possibility कि continuous there can be possibility कि एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में 2 घर हैं, एक मेरा एक मेरी फ्रेंड का. हो सकता है मेरी फ्रेंड मेरी नेबर ना हो. दैट कैन बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट? तो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मुझे अपने डेटा को सेव करना है लेकिन वो डेटा जो सेव हो रहा है वो मेरे नेबर वाले लोकेशन पे ना हो, किसी और अनदर लोकेशन पे हो. तो हम क्या करेंगे?
विद द हेल्प ऑफ वन पॉइंटर कह सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ सम पाथ हम उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, राइट? कि देयर इज अ लोकेशन। अब हम टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने एक मेमोरी में, मेरे पास एक स्पेस थी, मैंने स्पेस में अपने डेटा को रखा और उस डेटा में क्या दे दिया कि जो मेरा अनदर वर्ड है, जो भी मेरा अनदर वर्ड है हाउ, उसकी लोकेशन दे दी। बिकॉज बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी इज अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैं बात करूँ एक लोकेलिटी है, मेरा घर है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ कि उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है तो वो लोकेशन मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ सो डैट मैं इजिली रिट्रीव कर सकूँ कि मेरा नेक्स्ट टर्म जो है वो कहाँ पे सेव है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मीन्स हम एक लिस्ट फॉर्म करते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूस मेमोरी नहीं है, डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस मेमोरी नहीं है, जहाँ पे मुझे मेमोरी में स्पेस मिलेगी वहाँ पे मैं अपने डेटा को सेव कर दूँगी। एंड डेफिनेटली जहाँ मैं अपने डेटा को सेव कर रही हूँ उसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे ट्रेस कर दूँगी, मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी। दैट एक्चुअली कॉल्स अ लिंक लिस्ट। ओके, एक्चुअली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक लिस्ट, nowadays there's a technology called the blockchain. Blockchain, when I'm talking about chain, यानी कि blocks of chain, okay? तो when I'm talking about blockchain में लिंक लिस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ओके, when I'm talking about blockchain, what do you mean by blockchain? चैन का मीन्स एक चैन फॉर्म किया है, ये भी देखो एक काइंड ऑफ एक चैन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? और अगर मैं इस पर्टिकुलर को एक ब्लॉक बोल दूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर को एक ब्लॉक बोल दूँ और इस पूरी को मैं एक चैन बोल दूँ, देन वी कैन से दैट लिंक लिस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में जो डेटा आपका रिप्रेजेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट होता है। ओके, देयर इज वन अनदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द, I will take 5 minutes more. Okay, and there's a one another structure. Actually, that structure is called as stack. Why? Well, actually ये सब structure आ क्यों रहे हैं? ये सब structure आ रहे हैं normal human behavior से। ये कैसे हमारे माइंड में डेटा सेव हो सकता है? अगर मैं किसी चीज़ को सेव करूँ, किसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि मैं अलमीरा में सेव कर रही हूँ, अपने अलमीरा में अगर मैं अपने क्लोथ्स को सेव कर रही हूँ, अगर मैं अपने फाइल में डेटा को सेव कर रही हूँ, पेजेस को अरेंज कर रही हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? सेम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप किया गया है। ओके, देयर इज स्टैक। स्टैक का मीन्स क्या हुआ? स्टैक ने क्या कहा कि कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे हमारा एक बिस्किट का पैकेट ऑर्गेनाइज होता है। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक बिस्किट का पैकेट ऑर्गेनाइज होता है, तो मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल जो ह्यूमन क्या अगर बिस्किट का पैकेट ओपन करता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने हार्ड एंड सिक का पैकेट ओपन किया या पार्ले जी का पैकेट ओपन किया, तो ह्यूमन कैसे उसको खाएगा? वो एक साइड से उसको टीयर करेगा, राइट? एक साइड से उसको टीयर करेगा एंड वन बाय वन बिस्किट को लेने की कोशिश करेगा, राइट? वो यही करेगा। सेम स्टैक भी वही करता है। स्टैक ने क्या कहा? इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन सी इट इज अ पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर इट्स अ काइंड ऑफ पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, राइट? ऊपर से मैंने उसको टीयर करके रखा है। अगर मुझे बिस्किट को इंसर्ट करना था तो मैं ऊपर से करूँगी, अगर मुझे बिस्किट को निकालना है तो मैं ऊपर से निकालूंगी। इट्स अ काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर मुझे उस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना हो मेमोरी को, तो दैट इज द वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। ऑलराइट, देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ क्यू। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, आपने देखा होगा बैंक की हमेशा लाइन लगी रहती है, बैंक के आगे लाइन लगी रहती है, एटीएम के आगे लाइन लगी रहती है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर भी तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज अ डेटा। हम वैसे भी तो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेमोरी में। दिस इज अ काइंड ऑफ क्यू स्ट्रक्चर। क्यू में क्या होता है? आगे से एक एक पर्सन निकलता जाता है और पीछे से एक एक पर्सन एंटर करता जाता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन क्यू मींस कि एक डेटा आपका आता जा रहा है, राइट? पर्सन आता जा रहा है और आगे से पर्सन निकलता जा रहा है। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन भी हम कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एक्चुअली क्यू। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे हम ह्यूमन वर्ड से देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा है। सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी वांट इन अ कंप्यूटर वर्ड एज वेल। ऑलराइट, there is another type of organization. In this organization you can see here कि linear है। linear का means क्या है कि एक के बाद एक है। you can see that there is a linear architecture. This is also a linear architecture. This is a linear architecture. But when I'm talking about non-linear architecture, this is called the non-linear architecture. In non-linear architecture there is a one basic example called the tree. हम ट्री के अकॉर्डिंग तो डेटा को सेव कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्री, नॉर्मल ट्री। जो नॉर्मल ट्री है वो क्या करता है? नॉर्मल ट्री में क्या है? रूट है, रूट के ऊपर जब हम ऊपर बढ़ते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस,
राइट. ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. हम ऐसे भी तो डेटा को सेव कर सकते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं बोलूँ कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज़ अ रूट. अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे ट्री का रूट है वो स्टूडेंट हो गया, एंड दीज ऑल आर द ब्रांचेस. हम ऐसे भी डेटा को सेव कर सकते हैं, राइट. अगर मैं बोलूँ कि अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट रूट है, तो रूट अगर स्टूडेंट है तो उसकी ब्रांचेस क्या होंगी? उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी डेफिनेटली उसकी प्रोफेशनल लाइफ. उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसने कौन कौन से कोर्सेज लेके रखे वो हो सकता है. दिस ऑल आर कनेक्टेड टू दिस वन रूट. हम एक स्टूडेंट की तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम इस टाइप में भी तो डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट. If I'm talking about the next one is actually, you can see here the more visible way. Just I will take a 2 more minutes, okay? Yeah, this is another type of data structure. It's called a graph. This is another type of data structure. I want to say this is called a graph. आजकल सोशल मीडिया पे ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ओके, इफ़ एम टॉकिंग अबाउट कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, एम्प्लॉयज़ में ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है. इफ़ एम टॉकिंग अबाउट कि सोशल नेटवर्क मीडिया पे जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, कॉल्ड द ग्राफ. ग्राफ का मतलब क्या है? जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक. मैं हूँ, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी. मैं हूँ तो मैंने अपने आप को एक नोड बना दिया, ठीक है. मैंने अपने आप को नोड बना दिया, और आई वांट से मैंने आपको पोल बना दिया. ओके, आई एम दिस वन. मैं किसी की फ्रेंड हूँ, तो वो दूसरा पर्सन कौन है? या फिर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज एग्जांपल कि ये मैं हूँ, मैं किसी की फ्रेंड हूँ, वो दूसरा पर्सन ये हो गया. मैं किसी और की भी फ्रेंड हो सकती हूँ, ये दूसरा पर्सन ये हो गया. मैं किसी म्यूजिक को लाइक कर सकती हूँ, तो ये हो गया. मैं कुछ देख सकती हूँ, नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, तो वॉच हो गया. दिस इज एक्चुअली ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर जो सोशल नेटवर्क को फॉर्म करता है. ओके, और हर चीज़ यहाँ पे देखो एज अ पर्टिकुलर नोड काम करे. नोड मीन्स दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हुई है. आई वांट टू से दैट नोड हैव अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, अ पर्टिकुलर अकाउंट हैव अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, राइट. तो ये एक नोड हुआ, इसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी. ये एक अनदर नोड हुआ, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, राइट. आई वांट से दैट फेसबुक पे 2 अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है. ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप करना चाहते थे. जैसे इन्होंने आपस में फ्रेंडशिप की तो एक लिंक बन गया. अनदर, जैसे उसने कुछ सॉन्ग को सुना किसी साइट पे जाके, किसी और फेसबुक के पेज पे जाके, जैसे उसने उस पेज पे जाके किसी सॉन्ग को सुना, तो वहाँ पे लाइक का एक लिंक बन गया, क्योंकि हमने लाइक करके रखा उस पेज को. जब इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर का मीन्स पता क्या होगा? ट्री एंड ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ट्री में यहाँ पे कोई लूप नहीं है. लूप का मीन्स क्या है कि कोई सर्किल नहीं है, कोई साइकिल नहीं है. यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ आओ, मिस एंडिंग. लूप नहीं है. अगर आपको वापस जाना है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको लास्ट नेम से फर्स्ट नेम जाना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस पाथ. कोई सर्किल नहीं है, कोई लूप नहीं है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, देन यू कैन सी हियर दिस इज अ सर्किल. एक बाउंडेशन है, एक सर्किल बन रहा है, एक लूप बन रहा है. और जब भी लूप बनता है, जब भी मैं उस पर बार बार फॉर्मेशन करने की कोशिश करती हूँ, देन वी कैन कंसीडर इट्स अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, one last structure I did not want to say that कि one last structure because that can be possibility कि अभी भी इस पे रिसर्च हो रही है, अभी भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, अभी भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम लर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो if I'm talking about this type of structure called the hashing table. Okay, just a second. Yeah, this type of structure when I'm talking about, this type of structure is called the hashing table. What do you mean by hashing table? यू कैन टेक द वन एग्जाम्पल कि जैसे मैं बोलूँ कि बैंक अकाउंट्स होते हैं, राइट. वी हैव अ बैंक अकाउंट्स. अगर आप किसी भी बैंक एम्प्लॉय के पास जाएं और कहें कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो क्या करेगा? बैंक अकाउंट नंबर को जस्ट टाइप करेगा, एंड जैसे वो बैंक अकाउंट नंबर को टाइप करेगा तो आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिख जाती है, राइट. या बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि बैंक अकाउंट नंबर, राइट, या फिर मैं बैंक अकाउंट नंबर की बात करूँ, तो बैंक अकाउंट नंबर इज एक्चुअली वन आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ डैट कि अगर वो अकाउंट नंबर मैं कहीं टाइप करती हूँ, स्पेशली अगर बैंक एम्प्लॉयज टाइप करेंगे, तो आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी, राइट.
अगर मैं नाउ डेज बोलूँ कि आधार नंबर इज द आइडेंटिटी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आधार नंबर को टाइप करके मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को पता लगा सकती हूँ कि मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो इट मीन्स दैट कि वो भी डेटा है, वो भी डेटा सेव हुआ है, राइट। तो इफ आई वांट से दैट कि इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर मैं फॉर्म करूँ कि विद द हेल्प ऑफ सम कीज अगर मैं बात करूँ, आधार आई डी इज माई की, माई नेम इज माई की, ओके, माई इन माई बैंकिंग सेक्टर माई अकाउंट नंबर इज माई की। हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ की हमने डेटा को सेव करके रखा है, ओके। विद द हेल्प ऑफ कीज हमने डेटा को सेव करके रखा है। हम टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दूँ तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट नंबर देयर इज हैश फंक्शन, डेफिनेटली देयर इज सम मैथमेटिकल फंक्शन, हैश फंक्शन डेफिनेटली देयर इज सम मैथमेटिकल फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिकल फंक्शन, अगर मैं अकाउंट नंबर टाइप करती हूँ तो मेरे अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाती है। दैट एक्चुअली कॉल्स अ हैश टेबल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, और आई वांट से हैश टेबल लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप में भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। एक्चुअली आई हैव टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा को कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म में हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके। दे आर, ये जो स्ट्रक्चर से ऑलरेडी है, मार्केट में है, हम यूज़ कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं, बैंकिंग में यूज़ हो रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, मशीन लर्निंग में भी हम यूज़ कर रहे हैं। दे आर स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, बट और भी डेवलप हो सकते हैं। अब इफ़ यू सी कि आप अलग टाइप से डेटा को स्ट्रक्ट कर सकते हो और अलग टाइप से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर, देन दिस इज ऑल्सो अनदर रिसर्च एरिया, ओके। रिसर्च हर टॉपिक पे, हर कंप्यूटर फील्ड में हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हमारा काम है, कंप्यूटर फील्ड का काम है कि ह्यूमन लाइफ को मोर इजी बनाना। अगर किसी भी टेक्निक से ह्यूमन लाइफ इजी बन रही है, किसी भी टेक्नोलॉजी से ह्यूमन लाइफ इजी बन रही है, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट टेक्नोलॉजी, राइट। ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है, ऑलराइट। So this is actually a basic of data structure. When I'm talking about data structure, this is actually a basic of data structure. In next lecture, we will talk about कि some bit later in a detail of कि how data structure works actually, कैसे डेटा में हम इंसर्ट करते हैं, कैसे स्टैक एक्चुअली when I'm talking about कि कोड में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, overview of that thing, right? I'm not going to go into a detail, but overview of that thing, how stack can be represented, how Facebook can be represented, Facebook Graph APIs can be represented, overview of that thing. Alright? Yep guys, any doubt you can ask. I will share you this PPT. Don't worry about it. Yep guys, any doubt? No, ma'am, no doubt. Alright, then I will take next class most probably by tomorrow, and I will tell you the timing, because before 20 to 15 minutes I will tell you the timing of the class. Alright? Alright then. Okay, ma'am. Yeah, alright then. Thank you class. Thank you, ma'am. Thank you all.